Okay, so students, let's begin with the today's part of the lesson. So the first part that we are going to discuss is Rowlatt Act 1919. Okay, Rowlatt Act. Rowlatt Act was passed by Imperial Legislative Council. Keep in mind, Rowlatt Act, it was a type of law. It was a type of law which was passed by Imperial Legislative Council in 1919. Okay, 1919. And this law, the law or act was passed very hurriedly, यानी बहुत ही जल्दी में. Okay, बहुत ही जल्दबाजी में this law was passed by Imperial Legislative Council, okay, without considering Indians' opinion. Okay, so there were two provisions in Rowlatt Act. This question asked for 3 marks. Okay, so there were two very important rules in this Rowlatt Act. The number one rule was that it gave enormous power. It gave enormous power to British government to repress any political activities. ओके, यानी ये लॉ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिली कि इंडियन अगर लोग कोई भी मोर्चा निकालते या स्ट्राइक करते या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते तो उनको दबा देने का. ओके, उनको सामने बिल्कुल आने नहीं देना और उनको वहां पर ही दबा देना और उनके जो पूरे एक्टिविटीज है वो बंद करना, ये उनको राइट मिल गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Can you repeat once again? Sir, one per. हाँ, ओके, 1 minute. सुनो, नंबर 1 रूल इन दिस Rowlatt Act of 1919 was it gave enormous power. It gave enormous power to repress any political activities which were launched by Indians. रिप्रेस यानी उसको दबा देने का, सामने बिल्कुल उसको यानी ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते अपोज करने के लिए अलाउ नहीं करना और उसको दबा देकर उसको बंद कर देना. This is known as repress or suppress down. Okay, so this law gave enormous power to British government to repress any political activities. Okay, and second, this law also allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. अब ये थोड़ा सा एक दो वर्ड डिफिकल्ट है, तो आई वुड लाइक टू टेल इन सिंपल लैंग्वेज. ओके, लिसन. सेकंड रूल इन Rowlatt Act was it this law allows to arrest any Indians, okay, without trial for 2 years. यानी कुछ भी उसको इंक्वायरी ना करते हुए, उसको कुछ भी ना पूछते हुए किसी भी लीडर्स को पॉलिटिकल लीडर्स को, ठीक है, उसको अरेस्ट करने का और 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार यानी राइट Rowlatt Act के अकॉर्डिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला. Okay, British government got right to arrest any Indians without trial for 2 years. 2 साल तक उनको यानी अरेस्ट करना और 2 साल तक उनको कोई भी इंक्वायरी ना करते हुए जेल में बंद कर देना, ये राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला अकॉर्डिंग टू Rowlatt Act. समझ में आया क्या अभी स्टूडेंट्स? हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ठीक है. ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको याद रखना है 3 पॉइंट. नंबर 1 कौन सा, एक बार सुनो. नंबर 1, this Rowlatt Act was passed by Imperial Legislative Council in 1919 very hurriedly, जल्द में. Second point, this law gave enormous power to British government to repress any political activities. Okay, and third, this law allowed to arrest any Indians and kept in jail without trial for 2 years. Okay, अभी समझ में आया? तो इससे क्या हो गया, देखो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो गया. मेनी इंडियंस बिकेम आउटरेज अबाउट द Rowlatt Act. दे बिकेम सो एंग्री दैट दे कुड नॉट कम ऑन द स्ट्रीट. वो रास्ते पर नहीं आ सकते थे. इफ दे ट्राइड टू डेयर टू कम ऑन द स्ट्रीट, ओके, देन दे वुड बी अरेस्टेड एंड केप्ट इन जेल विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. तो अभी कैसे करने का, रास्ते पर कैसे आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करना है. अगर हम ट्राई करेंगे तो हमको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे. वॉज देयर प्रॉब्लम और नॉट? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, प्रॉब्लम sir. हाँ, तो ये प्रॉब्लम था. अभी क्या करना है? ओके, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था कि इंडियंस कुड नॉट अपोज ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज दे पास दिस Rowlatt Act of 1919. Now what happened then?
many people organize themselves. Okay, rallies were organized in different places. Okay, rallies were organized, strikes were organized. There were frequent attacks on government building. Now listen, I am going to tell you now the effects of Rowlatt Act. Listen. Effects. Gayatri, mic is on. Put your mic off. Ha. Shahul also. So listen. Now I am going to tell you the effects of Rowlatt Act of 1919. Okay. Number one, rallies were organized in most of the places. Okay. There were attacks on government buildings such as telephone, post office, okay, forest buildings, forest offices, school and colleges, banks, etc. Okay. There were attacks on these government buildings. Even telegraph and telephone lines were disrupted. यानी टेलीफोन और टेलीग्राफ की जो लाइन यानी अंदर अंडरग्राउंड डालते थे वो डिसरप्ट कर दिए. रेलवे लाइंस वेर ब्रोकन. Okay, railway tracks were broken, telegraph and telecommunication lines were disrupted. Okay, and there were attacks on government buildings, and even Mahatma Gandhi was also barred to enter in Delhi. Okay, Mahatma Gandhi को अपोज किया दिल्ली में एंटर करने के लिए. Okay, and martial law was imposed. Martial law, it is the law where many people cannot come together at one place. Martial law यानी कर्फ्यू जैसे. कर्फ्यू पता है आपको? कर्फ्यू. हाँ सर. हाँ, Yes, तो sir. कर्फ्यू यानी क्या होता है कि कर्फ्यू जब लगता है तो 5-6 लोग एक साथ आकर डिस्कस नहीं कर सकते या वो कहीं पर मिल नहीं सकते. ओके, और ये है कर्फ्यू. तो कर्फ्यू अगर जब लगता है तो बाहर गांव का कोई भी आदमी या बाहर डिस्ट्रिक्ट का कोई आदमी नहीं आ सकता है. ओके, और अपने एरिया का आदमी दूसरे गांव में नहीं जा सकता है. अगर रास्ते पर कोई भी दिखे तो सबको मार पड़ती है पुलिस से. तो ये है कर्फ्यू. So this type of martial law was imposed in this period, okay, and General Dyer, one of the British official, took command on this situation. General Dyer फिर उसका head बन गया था. Okay, वो situation control करने के लिए, because many people across the country, they organized rallies in different places. Okay, they started giving slogans on the streets. Okay, there were attacks on government buildings, telephone lines and telegraph lines were disrupted. Okay, and even martial law was imposed. Mahatma Gandhi barred from entering into Delhi. Okay, and General Dyer took command on the situation. Okay, so this was started from 6th April 1919. Means Mahatma Gandhi called hartal. This is hartal. Hartal means strike. याद रखो, Mahatma Gandhi called hartal against the proposed Rowlatt Act of 1919. जो Rowlatt Act बना था जिसमें बहुत ही inhuman values and inhuman rules were included. Against this proposed Rowlatt Act, Mahatma Gandhi called hartal, that is strike, on 6th April 1919. So many people responded positively towards the call of Mahatma Gandhi, and they come on the street on large number, including women, old age people, okay, youths, children. Okay, these people came on the street and they protest against the Rowlatt Act of 1919. Okay, do you understand, students? Yes sir. Yes. Now listen. अभी यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पार्ट है, बहुत ही एक्साइटमेंट पार्ट है और बहुत ही नॉलेजेबल एक पार्ट है कि इसके बाद तुरंत क्या हुआ. ओके, लिसन. 6th April 1919, okay, to 13 April 1919 तक ये चला था. ओके, मींस 7 days. ओके, ये उसके इफेक्ट्स चल ही रहे थे. रौलट एक्ट के इफेक्ट्स चल ही रहे थे. बहुत ज्यादा पूरे कंट्री में एक आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. ओके, रौलट एक्ट के रूल के हिसाब से उसी टाइम में, ओके, मेनी इंडियंस एंड कांग्रेस डिसाइडेड टू डिस्कस द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो they gathered at Jallianwala Bagh
place in Amritsar, Punjab. Okay, Jallianwala Bagh place in Amritsar, Punjab. Many people come to attend this meeting. Okay, but many people were not aware about that there was martial law. यानी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ यानी कर्फ्यू लगा है. ओके, और एक साथ सब लोग मिल नहीं सकते. And therefore, many people come to attend the meeting of Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab on 13 April 1919. Okay, some people came for two reasons. Some people came to attend annual Baisakhi fair. बैसाख नाम का एक फेस्टिवल है, पता है आपको? वैशाख बोलते. ओके, बैसाख नाम का एक फेस्टिवल है. तो बैसाख फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर. ओके, कुछ लोग आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम क्या करेगा और कौन से रूल अप्लाई करेगा. ओके, उनके रूल और कितने डेंजर होंगे. तो सम पीपल केम टू डिस्कस ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स. रिप्रेसिव यानी बहुत ही दबा देने वाले रूल क्या बनाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको डिस्कस करने के लिए भी कुछ लोग आए थे. ओके, कीप इन माइंड, इन जालियनवाला बाग प्लेस, ओके, सम पीपल केम टू अटेंड एनुअल बैसाखी फेयर, जत्रा. ओके, फेयर यानी जत्रा. And some people came to discuss repressive measures by British government. Okay, but many people were unaware about the martial law that was imposed after the Rowlatt Act. So what happened then? Okay, people gathered at Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab. Okay, then as soon as this news reached to the General Dyer, which was the head of this out of control situation, he entered in the Jallianwala Bagh place, closed the exit point. Okay, he also closed the doors and started open fire, okay, on the innocent people which gathered at Jallianwala Bagh place, killing hundreds. बहुत ज्यादा लोग इस पर मारे गए जालियनवाला बाग में, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, ओके, वीमेन, old age people, youths. These people were killed in large number in Jallianwala Bagh place. Okay, as soon as this news of killing by the British officials to Indians reached in entire country, okay, there was a mass mobilization of the people, and people from different parts of the country started demonstrating against the British government. They started protesting against the British government. Okay, the effects were also same of Jallianwala Bagh place, Jallianwala Bagh incident. Now listen, the people who killed at one place in this Jallianwala Bagh place in Amritsar, Punjab, okay, this is known as Jallianwala Bagh massacre. Massacre means it is the incident, or it is the event where large number of people killed at same time. This is known as massacre. So Jallianwala Bagh massacre took place on 13 April 1919. अभी इसके इफेक्ट्स देखेंगे. Okay, what were the effects against the Jallianwala Bagh incident? The effects are same, only two effects are different than Rowlatt Act. स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? हेलो, हाँ, ओके, हाँ, तो देखो अभी इफेक्ट्स क्या थे. सेम, rallies were organized in many places. There were attacks on government buildings such as post office, okay, telephone office, forest offices, banks, okay, government buildings, government official buildings. Okay, some Indians tried to kill the British officials. Okay, some people also protest very severely against the British government. Okay, the telephone and telegraph lines were also disrupted. And two effects were different. That one, listen, satyagrahis who participated in this Jallianwala Bagh effects, okay, satyagrahis were asked to rub their noses on the ground
यानी सत्याग्रही को ऐसे ऐसे पीछे पकड़कर उनको नाक, ये जो नाक है ना, वो नाक को जमीन को रगड़ने के लिए बोलते थे। इतनी ज्यादा इनह्यूमन और टॉर्चर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया इंडियंस को आफ्टर जालियनवाला बाग, क्योंकि लोग बहुत ही गुस्सा हो गए थे। लोगों को ऐसे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी। ओके, दे कुड नॉट दे डिड नॉट हैव पेशेंस। ओके, तो इसलिए बहुत सारे लोग यानी रास्ते पर आकर अटैक करने लगे, सभी रूल्स को ब्रेक करने लगे, एंड द सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, okay, they asked the satyagrahis, okay, to rub their noses on the grounds, यानी जमीन को नाक रगड़ने के लिए वो बोलते थे। they asked to rub their noses on the grounds, and second था crawl on the street। crawl यानी ऐसे घसीट कर लेके आना। समझ में आ रहा है ना? हेलो? Yes, sir. हाँ, देखो, हाँ, मैं अभी एक्शन भी कर रहा हूं आपके सामने। ऐसे सत्याग्रही को पकड़कर ऐसे घसीट कर लेके आना। ओके, ऐसे घसीट कर लेके आकर क्रॉल, ओके, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स। पीपल हैड टू डू सलाम टू ऑल साहिब्स, यानी जो मास्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके सामने आकर ओके उनको सलाम करना पड़ता था कि साहब इसके बाद मैं ये ऐसे काम नहीं करूंगा, रास्ते पर नहीं आऊंगा। दिस वॉज सेकंड इफेक्ट। ओके, पहला एक बार सुनो, सत्याग्रहीज वेर आस्क्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, एंड सेकंड क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, यानी घसीट कर लेके आना, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट। सत्याग्रहीज और पीपल हैड टू डू सलाम मीन सैल्यूट टू ऑल साहिब्स। इतने ज्यादा टॉर्चर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ किया आफ्टर जालियनवाला बाग मैसेकर और आफ्टर जालियनवाला बाग इंसिडेंट। समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट? Yes, sir. हाँ, ओके, तो ये थी जालियनवाला बाग इंसिडेंट। ओके, दोनों के इफेक्ट सेम है, सिर्फ जालियनवाला बाग के इफेक्ट्स अगर पूछेंगे तो यहां पर 2 इफेक्ट्स दूसरे लिखना। ओके, और बाकी सेम। रैलीज वेर ऑर्गेनाइज इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। There were attacks on government buildings such as banks, post office, school, colleges, okay, government building, forest building, etc. Third, telephone and telegraph lines were disrupted. Okay, और बाद में जालियनवाला बाग में फिर सत्याग्रहीज were asked to rub their noses on the grounds and crawl on the streets. Okay, they had to do salam to all sahibs. Okay, so now these were 2 incidents that Mahatma Gandhi witnessed and decided that there should be some broad based movement. अभी देखो महात्मा गांधी ने कैसे और दूसरा दिमाग चलाया। महात्मा गांधी ने और इसके बाद कैसे उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई पूरे इंडिया के लोग एक साथ आने के लिए। ओके, because he observed, Mahatma Gandhi observed that there were less participation of people in Rowlatt Act as well as Jallianwala Bagh incident. Means people from all societies and all communities did not participate in large number in Rowlatt Act and Jallianwala Bagh incident. Okay, therefore he decided to launch such a broad based movement that can bring largest number of people under one roof, under one umbrella. Okay, तो दूसरी बात आपको बता दूं कि जालियनवाला बाग जब इंसिडेंट हुई तो बहुत सारे लीडर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिली हुई जो अवार्ड या टाइटल थे वो वापस कर दिए। ओके, फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर, द फर्स्ट नोबेल रेसिपिएंट इन इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर, ही रिटर्न हिज सर टाइटल। आपको पता है बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग इंडिया के लोगों को सर नाम की टाइटल देते थे, सर। ओके, सर रविंद्रनाथ टैगोर, लाइक दिस। तो ये सर जो टाइटल थी, दिस टाइटल वाज अवार्डेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, द राइटर ऑफ फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम गीतांजलि, बराबर है। तो गीतांजलि के जो राइटर थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको ये अवार्ड मिला था। लेकिन जैसे ही जालियनवाला बाग इंसिडेंट हुई और बहुत सारे इंडियन लोग ब्रिटिश के द्वारा मारे गए,
तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दी. ही रिटर्न, ही सरेंडर हिज सर टाइटल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट. समझ में आया? हेलो हेलो. Yes, sir. हाँ. हेलो स्टूडेंट्स, आप प्लीज बी अटेंटिव. बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अभी एक टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद वी विल एंड टुडेज टॉपिक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज खिलाफत कमिटी. खिलाफत कमिटी. ओके, और खिलाफत इश्यू. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट Mahatma Gandhi realized that in order to achieve Swaraj, in order to achieve freedom from the British Empire, there should be some broad-based movement which can bring Hindus and Muslim together. क्योंकि राउलट एक्ट और जालियनवाला बाग में बहुत ज्यादा लोग सभी कम्युनिटीज के नहीं थे. It was limited. The participation of people in these two movements was limited. And Mahatma Gandhi wanted that people from all sections of society, people from all communities, okay, should participate in large number so that a big opposition can be created against colonial government. Okay, colonial government के against में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है करके उन्होंने सोचा कि कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो मैं लॉन्च करूं ताकि इंडिया के सारे लोग एक साथ आएंगे यूनिटी में. ओके, एंड ये ऐसे वो सोच ही रहे थे. ही वॉज थिंकिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट और व्हाट टाइप ऑफ इशू शुड आई टेक in order to bring Hindus and Muslim together in the political arena, in the particular unity, so that it would be possible to wage a collective struggle against the British government. तो वो सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी मूवमेंट है जो मैं स्टार्ट करूं ताकि हिंदू और मुस्लिम और बाकी सभी लोग एक साथ आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं. तो उसी टाइम में अभी आपको मैंने जैसे बताया कि ये इंसिडेंट चल रहे थे 1919 में, बराबर है. तो आपको बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1918 में. तो 1919 बस एक ही साल चल रहा था. ओके, सो व्हाट हैपन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज जस्ट एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. अभी देखो यहां पर. हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. Yes, sir. हाँ, बस 5 मिनट सुनो. ऑटोमन टर्की. देखो ऑटोमन टर्की, ऑटोमन यानी ये एक ऑटोमन नाम का एम्पायर था. इट वॉज एम्पायर. जैसे शिवाजी महाराज का एम्पायर था ना, मराठा एम्पायर, पता है क्या? हाँ सर. हाँ हाँ. Yes, sir. ओके, तो याद रखो महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर था. ओके, वैसे ही टर्की नाम का एक देश है, टर्की नाम की एक कंट्री है, उस कंट्री में ऑटोमन नाम का एम्पायर था. ओके, ऑटो वॉन बिस्मार्क का वो एम्पायर था. तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की का डिफीट हुआ. टर्की यानी हार गई. टर्की नाम का जो देश है वो हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. ओके, तो आपको पता है जो कंट्री हारती है वार में उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा ट्रीटी लगाते हैं. ट्रीटी लास्ट ईयर आप पढ़े होंगे, वर्साइल ट्रीटी. सर ट्रीटी मतलब? हाँ, ट्रीटी मतलब यानी एक एग्रीमेंट होता है विनर और लॉस्ट कंट्री में. जो कंट्री हारती है और जो कंट्री जीतती है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है. और एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता है, जो कंट्री हारती है उनके बहुत ज्यादा ने क्या चीजें, वो कंट्री के मिनरल रिसोर्सेस, वो कंट्री का एरिया, वो कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ने क्या विनर्स कंट्री जबरदस्ती से ले जाती है. पता है क्या ये आपको? यस सर. हाँ, ठीक है. हाँ, याद रखो. हाँ, तो अच्छे से सुनो. अच्छे से सुनो. तो ऐसे होता है. तो ये जो दोनों के बीच में जो क्या बोलते हैं एग्रीमेंट होता है, सौदा, उसको बोलते हैं ट्रीटी. समझ में आया? तो क्या हुआ, तो ऐसे ही 1918 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. ऑटोमन टर्की का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुआ, हार गई. एंड रूमर्स स्प्रेड, रूमर्स यानी अफवाह, rumors spread that a harsh peace treaty
is going to be imposed on the Turkey. टर्की यानी टर्की के ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी लगने वाली है. ओके, तो उसको बचाने के लिए, टर्की को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने इंडिया में खिलाफत इशू स्टार्ट किया. तो खिलाफत यानी क्या है? The head of the Turkey country was known as खलीफा. खलीफा, देखो टर्की का जो हेड था उसको, वो हेड को बोलते थे खलीफा. समझ में आ रहा है क्या? खलीफा. ओके, खलीफा वॉज अ स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. इस्लाम पूरे दुनिया का जो इस्लाम कम्युनिटी है उनके सबसे ऊपर का जो हेड रहता था उसको बोलते थे खलीफा. समझ में आया क्या अभी? हाँ सर. हाँ हाँ, ठीक है. अभी देखो खलीफा, तो टर्की का जो हेड था वो था खलीफा एंड ही बिलोंग फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि टर्की ये मुस्लिम कंट्री है. ठीक है, तो अभी क्या हुआ? रूमर स्प्रेड दैट अ हार्श पीस ट्रीटी इज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द खलीफा. खलीफा के ऊपर अभी ट्रीटी वो लगने वाली थी. ओके, खलीफा के ऊपर ट्रीटी लगने वाली थी एंड इट वाज स्प्रेड दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन खलीफा, द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. अभी इसलिए खलीफा अभी डेंजर में है. खलीफा के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो खलीफा को बचाने के लिए ओके, महात्मा गांधी ने इंडिया में खिलाफत इश्यू स्टार्ट की. खिलाफत कम्स फ्रॉम खलीफा. अभी समझ में है आपको? हेलो? यस. हाँ, देखो थोड़ा सा लिंक है, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्लानिंग है, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और एक्साइटिंग पार्ट है. थोड़ा सा एक बार सुनो. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was ended with the defeat of Ottoman Turkey, and rumors spread that a harsh peace treaty is going to be imposed on the Khalifa, the spiritual leader of Islamic world. पूरे इस्लाम कम्युनिटी का सबसे बड़ा हेड उसको बोलते हैं खलीफा. तो वो खलीफा के ऊपर अभी ट्रीटी लगने वाली है और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो खलीफा, टर्की के खलीफा को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने इंडिया में खिलाफत कमेटी स्टार्ट की. खिलाफत कमेटी. Why he started Khilafat committee in India? Because Khalifa belongs from Muslim and Mahatma Gandhi took up the issue of Muslim in order to bring Muslim people under the freedom struggle. Okay, because he realized that Swaraj would not be possible without bringing Hindus and Muslim together. जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं आते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हम आंदोलन नहीं कर सकते. एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल to achieve Swaraj, that is freedom. Okay, therefore Mahatma Gandhi started Khilafat committee at Bombay in 1919. बॉम्बे में महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी स्टार्ट की बॉम्बे में 1919 में. ओके, एंड व्हेन ही स्टार्टेड खिलाफत कमेटी एट बॉम्बे इन 1919, मेनी मुस्लिम पीपल ज्वाइन टू दिस खिलाफत कमेटी. यानी उनको लगा कि नहीं, महात्मा गांधी हमारा इशू ले रहा है, महात्मा गांधी हमारे इश्यू को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ज्वाइन नहीं होंगे? Therefore many people joined to this Khilafat committee, including some names are there. Kshitiz, put your mic. हाँ, Kshitiz, put your mic off just for 2 minutes. हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, अभी देखो 2 मिनट. So two Muslim brothers joined to this Khilafat committee. They were Muhammad Ali and Shaukat Ali. कौन? Muhammad Ali and Shaukat Ali. Very good. हाँ, Muhammad Ali and Shaukat Ali. These two Ali brothers joined to this Khilafat committee along with Mahatma Gandhi. And they, Muhammad Ali, Shaukat Ali, Ali brothers and Mahatma Gandhi, they traveled extensively throughout the country for mobilizing popular support to the Khilafat committee. यानी पूरे इंडिया में वो घूमे सभी लोग, अली ब्रदर्स और महात्मा गांधी और बाकी लोग, और लोगों को बता रहे थे, लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि आप खिलाफत कमेटी को ज्वाइन करो ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हम आंदोलन कर सकते और खलीफा को बचा सकते. ओके, तो टर्की के खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, टू डिफेंड द पावर्स ऑफ खलीफा, महात्मा गांधी स्टार्टेड खिलाफत कमेटी एट बॉम्बे. ओके,
सो दिस वॉज द खिलाफत कमिटी। समझ में आया स्टूडेंट्स अभी आपको? Yes, sir. हाँ, तो Yes, अभी, sir. हाँ, अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट नहीं हुआ क्या कि महात्मा गांधी ने टर्की के खलीफा को बचाने के लिए इंडिया में क्यों स्टार्ट किया? इंडिया में स्टार्ट करने से खिलाफत कमेटी टर्की का खलीफा कैसे बचेगा? इज दिस क्वेश्चन और नॉट? Yes, sir. तो आप में से Yes, किसी ने sir. सोचा है क्या कि टर्की के खलीफा को टर्की वो बहुत ही यूरोप कंट्री में, यूरोप कॉन्टिनेंट में है, तो टर्की के खलीफा को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने इंडिया में वो मूवमेंट लॉन्च की, तो ये कैसे? आपको कुछ Because क्वेश्चन? they wanted to unite Muslim and Hindus. हाँ, yes, yes, okay. In order to bring Hindus and Muslim together for the Swaraj, okay, this was one आंसर। लेकिन टर्की के आदमी को बचाने के लिए इंडिया में अगर मूवमेंट स्टार्ट करते तो वो प्रॉफिटेबल होती क्या? वो बच सकता क्या कि नहीं बच सकता? आपको क्या लगता है? आर यू थिंकिंग इन दिस वे और नॉट? सर नहीं बच सकता। नहीं बच सकता। और देखो, बच सकता सर। बच सकता कैसे? हाँ, बताओ। यस, स्वरा ने बोला क्या? स्वरा बताओ, या राशि ने बताया? सर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही वो ट्रीटी लॉन्च करने वाली थी ना। हाँ, ब्रिटिश नहीं, हाँ, ब्रिटिश नहीं, दूसरे लोग। हाँ, हाँ, तो इंडिया में वो लोग करेंगे तो वही लोग वहां पे भी सपोर्ट करेंगे ना। हाँ, ओके, हाँ, ये एक होता है। और दूसरी बात देखो, दूसरे कंट्री के प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए अपने कंट्री में अगर वो मूवमेंट लॉन्च करते तो उसका क्या होता है पता है? इंटरनेशनल इंपैक्ट तैयार होता है। समझ में आया ना? हेलो हेलो, हाँ, इंटरनेशनल प्रेशर तैयार होता है, इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, और वो कंट्री फिर जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व कर सकती है। तो इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर इज मोर इंपॉर्टेंट। So, dear students, I hope that you have understood today's three part: Rowlatt Act, Jallianwala Bagh incident, and Khilafat committee. समझ में आया क्या सभी students? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir. Okay, so I hope you have understood this well. We'll meet tomorrow with the very interesting topic. Okay, in the next part. Thank you. Bye bye. Bye, sir. Bye bye. Bye bye. Bye, sir. Bye.